Very good morning to all of you, those who are here in the studios in EMPC and the guests and the students there at the regional centers and at other places who are watching this program. I, Dr. Manoj Kulshrestha, on my personal behalf and on behalf of Indira Gandhi National Open University, I welcome you all for this session of teleconferencing coming to you live through EduSet. As you all know, this is the fourth time we are meeting in the fourth cycle orientation and induction program for the students of certificate in motorcycle service and repair. Here for the smooth conduct of this session of induction and orientation program, we have with us my colleague, the co-coordinator of this project, Dr. Shiv Kumar Vyas. Besides him, sitting Mr. Rajesh Mukhija from Hero Honda Motors Limited and Mr. Amit Chopra, also from Hero Honda Motors Limited. So, as you all know, friends, that we are fourth time meeting. The third cycles have already been conducted at 4 locations successfully, and I am very happy to announce that this session we have spanned our wings and we have gone at 8 places. Bhopal, barring Bhopal just now for this cycle because they have some administrative problems and they'll come out of that, and I hopefully join us in the next cycle when we will be going for 9 centers of Hero Honda training centers. Along with that, some additional centers, some private party participations for the next cycle. मित्रों, इसको शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि व्यास साहब यदि कुछ क्विक रिमार्क, ओपनिंग रिमार्क इसके ऊपर देना चाहें, और आपको उन फोन नंबर से भी बताएं, आपको फोन नंबर्स भी बताएं जिससे आप हमसे इंटरेक्शन कर सकते हैं. और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव बनाएं. आप नहीं इंटरेक्टिव बनाएंगे, आप नहीं उधर से कुछ बोलेंगे तो हमें इधर से बोलना पड़ेगा, जो हम करेंगे. पर मैं आपसे फिर से प्रार्थना करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बनाएं, अपने अधिक से अधिक सुझावों से हमें अवगत कराएं और हम अधिक से अधिक चीजें आप तक पहुंचा पाएं. ये सम्मिलित प्रयास हम दोनों करें तो ये प्रोग्राम ज्यादा सफल होगा. व्यास साहब. धन्यवाद डॉक्टर मनोज. अच्छा, हमारे स्टूडियो में यहाँ पर दिल्ली में हीरो होंडा के ऑफिशियल्स और सारे स्टूडेंट्स जो कि दिल्ली सेंटर पे अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करेंगे मौजूद हैं. हम उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि वो यहाँ पर भी हमसे अपने प्रश्न पूछें, जो भी उनकी जिज्ञासा है उसका समाधान हमसे जानने की कोशिश करें. अच्छा, हमारे स्टूडियो के नंबर हैं, एक तो टोल फ्री नंबर है जो कि है 1800112345. This is a toll free number for which no charges are levied, so everybody from the country who is having MTNL or BSNL phone can make use of it. Then we have got one fax number here. So in that one, if those who are calling from outside will have to prefix the STD code of Delhi 011, and the fax number is 29536134. Besides this, there are 3 more telephone numbers are there. They are 29532844 as well as 45, 29536131. हम, जैसा कि भी डॉक्टर मनोज ने आपसे बोला कि हम ये चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हमसे पूछें, ज्यादा से ज्यादा अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, जिससे कि हम सब इस प्रोग्राम को इस तरह से देख सकें कि कम से कम परेशानियां हो और आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके. तो ये मेरी प्रार्थना होगी सभी से. And I hope that very soon you will start making calls once we make a small presentation, and thereafter we would expect that you all will be putting your questions forward for our interaction with us. No, Dr. Manoj. Thank you, Dr. Vyas. Now I start my formal presentation, but I again request you, you can obstruct me, you can stop me wherever you feel that you have some questions and you need an answer. We will be happy to answer you whatever queries you will put. In my presentation, we will be covering the things in following manner. You can see on your screen. Firstly, we will go for little bit of the university in which you have enrolled. जिस विश्वविद्यालय में आपने प्रवेश लिया है, उस विश्वविद्यालय के बारे में जानना भी आपके लिए आवश्यक है.
उसके बाद जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वोकेशनल सिस्टम हमने इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बनाया है उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। फिर हम इस सर्टिफिकेट प्रोग्राम, जो सर्टिफिकेट मोटरसाइकिल सर्विस एंड रिपेयर जो सर्टिफिकेट हमने डिजाइन किया है आपके लिए, उसके कंटेंट्स, उसके और दूसरे डिटेल्स जो भी हैं वो सारी चीजें आपके सामने रखी जाएंगी। फिर इस प्रोग्राम को कैसे आप तक पहुंचाया जाएगा, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, आपको कैसे कैसे मूव करना है, कहां जाना है, कब जाना है, कौन सी डेट पे जाना है, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। एंड लास्टली वी विल कंक्लूड एवरीथिंग। तो हम शुरू करते हैं विश्वविद्यालय से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और ये दूर शिक्षा में डील करता है। दूर शिक्षा से हम आपको शिक्षित करते हैं। एंड दिस इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड एज लॉन्ग एज द एनरोलमेंट इज कंसर्न इन द वर्ल्ड। सो वी हैव अराउंड 14.5 million students on roll. Sorry, 1.4 million students on roll. 14.5 lakhs students are studying in our university and we have around over 125 programs. हमारे विश्वविद्यालय के दूसरे लेवल पे हमारे रीजनल सेंटर्स, क्षेत्रीय केंद्र आते हैं। उन क्षेत्रीय केंद्रों की संख्या इस समय 64 है। इन 64 केंद्रों में कुछ केंद्र जो हैं एक्सक्लूसिवली डिफेंस सर्विसेज के लिए बनाए गए हैं, कुछ आर्मी के हैं, कुछ एयरफोर्स के हैं, कुछ नेवी के हैं। और इसके नीचे आते हैं हमारे अध्ययन केंद्र। उन अध्ययन केंद्रों की संख्या पूरे देश में 1500 से ज्यादा है। अध्ययन केंद्र भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो कुछ एक ऐसे स्टडी सेंटर्स होते हैं जहां पे सारे प्रोग्राम चलते हैं। कुछ स्टडी सेंटर्स ऐसे होते हैं जिनमें कि एक विशेष प्रकार के प्रोग्राम ही चलते हैं, जैसे आपका स्टडी सेंटर है जिसमें सिर्फ आपका ही प्रोग्राम चलता है, जबकि आपके ही शहर में कोई ऐसा कॉलेज भी हो सकता है जहां बीए, बीएससी, बीकॉम और अन्य प्रकार के पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था हो। उनको हम सामान्य अध्ययन केंद्र कहते हैं। ये आपका प्रोग्राम स्पेसिफिक स्टडी सेंटर है जहां पे सिर्फ आपके प्रोग्राम के ही बारे में बात की जाती है। और इसके अलावा एक जानकारी मैं देना चाहूंगा कि हमारा विश्वविद्यालय सिर्फ अपने देश की सीमाओं में ही नहीं है। हम अपने देश से निकलकर 37 देशों में अपनी उपस्थिति आज तक दर्ज करा चुके हैं और उन देशों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को शुरू कर चुके हैं। एंड लास्टली, वी आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग द हायर एजुकेशन in the country, we are also assisting the developing countries wherever they feel that they need our assistance. We are happy to extend our cooperation and help to the developing countries to start various kinds of programs in their country. So this was little bit about the university. We can see the objectives of the university on our screen. It is to impart education and knowledge through the various means suited to the ODL mode. ODL is nothing but the open and distance learning. In the second objective, you can see that provide higher education to the large segment of population, particularly the disadvantaged segment of the society. This is one of the mandate given to the university. हमारे विश्वविद्यालय का लक्ष्य है, उद्देश्य है कि इस तरह के लोग जो कि स्किल बेस्ड कामों में लगे हुए हैं उनके लिए भी किसी प्रकार के प्रोग्राम शुरू करना। इसके साथ ही साथ टू एनकरेज, कोऑर्डिनेट एंड असिस्ट ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम व्हाइल डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड्स इन सच सिस्टम्स इन द कंट्री। एक डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल जो कि विश्वविद्यालय के परिसर में ही है और हमारा जो कुलपति है, हमारे विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है उस डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के, विच इज ए रेगुलेटरी बॉडी फॉर रेगुलेटिंग द नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन द कंट्री, लाइक AICT is for the technical education in the country. So, and finally, the objective is to strengthen the natural and human resources in the country through medium of education. So these are the objectives of the university. Instructional system, as I told you, there are so many programs we are running. In these programs, we impart instructions through various components. On your screen, there are some components listed. You can see right from the beginning, it's the self-instructional course material packages where we provide you the course material. उस कोर्स मटेरियल को हम आपके लिए बनाते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए, एंड दिस कोर्स मटेरियल इज गिवन टू यू. फिर उसके बाद असाइनमेंट होते हैं, सपोर्टिंग ऑडियो वीडियो मटेरियल भी आपको दिया जाता है. जब आप हीरो होंडा के ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो आपको वहां वीडियोस वगैरह दिखाए जाएंगे. वो वीडियो भी इस पाठ्यक्रम की डिलीवरी के ही पार्ट हैं. लाइब्रेरी फैसिलिटी, जहां पे भी आपको कोई और फर्दर रीडिंग की जरूरत पड़े, आपको लगे कि और ज्यादा पढ़ना है, तो उसके लिए किताबें वगैरह की लिस्ट और कुछ किताबें भी आपको दी जाएंगी उन सेंटर्स पे जहां पे आप अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं. रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्ट, जस्ट नाउ यू आर व्यूइंग
this program. Likewise, we will also come for academics in the similar kind of setup, and we will teach you through the teleconferencing through EduSet. So this is just now is an orientation and induction session. Tomorrow there may be academic session for your program through teleconferencing. उसके बाद radio counseling, also we conduct the radio counseling for our students, and finally the work related field project work, जो कि बड़े programs में उसकी जरूरत पड़ती है. आपका छोटा program है, 2 महीने का program है. कल जब हम डिप्लोमा आपके लिए शुरू करेंगे सर्विस एंड रिपेयर में, उस समय आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी करना होगा, आपको कुछ असाइनमेंट्स भी जमा करने होंगे. इस पूरी लिस्ट से हम ये बताना चाहते हैं कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में हमारे यहाँ जो कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू हम आपको ओरिएंट करते हैं, एजुकेट करते हैं, उन कंपोनेंट्स की जानकारी, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम की जानकारी देने की कोशिश इससे की गई है. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो, एचआरडी सिनेरियो, यदि आप ऑटो इंडस्ट्री में देखें तो पूरी इंडस्ट्री को यदि हम इस ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकें और इसको हम डिवाइड कर सकें 3 भागों में, और उन 3 भागों को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इस लेवल से डिनोट करें, या फिर यदि हम उसको प्रोफेशनल, सब प्रोफेशनल एंड ट्रेड लेवल, इन तीन प्रकारों से यदि हम उनको उनका नाम दें इन लेवल्स का, तो जो सेगमेंट होगा सबसे ऊपर वाला जो ट्रायंगल है वो उन लोगों का है जो डिग्री होल्डर्स हैं. उसके बाद वाला जो सेगमेंट है ये उन लोगों का है जो कि डिप्लोमा करके ऑटो इंडस्ट्री में आए हैं. जो डिप्लोमा से डिग्री करना चाहते हैं काम करते हुए, जो लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, ऑटो इंडस्ट्री में, और वो डिप्लोमा है, उन्होंने डिप्लोमा के बेसिस पे जॉब लिया और उसके बाद वो फिर डिग्री करना चाहते हैं अपने बेहतर भविष्य के लिए, तो उनके लिए बहुत सारे अवसर देश में उपलब्ध हैं. वो पार्ट टाइम डिग्री कोर्स के लिए जा सकते हैं, वो एएमआई के लिए जा सकते हैं, वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे बीटेक प्रोग्राम में जा सकते हैं, जहां पे कि डिप्लोमा मिनिमम क्वालिफिकेशन है. पर यदि हम सबसे नीचे वाले सेगमेंट की बात करें, यदि आप अपने स्क्रीन पे देखें, जो लाल रंग से दिखाया गया है, जो ट्रेड लेवल है, जो उन लोगों का समुदाय है जो लोग काम कर रहे हैं हाथ से, जो ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, जो कि गाड़ियों के सुधारने, रिपेयरिंग, जो कि मोटरसाइकिल टेक्नीशियन है. ऑटो इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो ये सिर्फ मोटरसाइकिल टेक्नीशियंस के ही लिए नहीं, स्कूटर इंडस्ट्री हो या फॉर दैट पर्पज देयर में भी 4 व्हीलर्स, ऑटो इंडस्ट्री. तो उस ऑटो इंडस्ट्री का जो सबसे नीचे वाला सेगमेंट है, जो ट्रेड सेगमेंट है, उनके लिए यदि हम बात करें तो इस लाल रंग के जो सेगमेंट आपको दिखाया वो ऑटोमोबाइल वर्कर्स का सेगमेंट है, और उनके लिए कोई ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन एवेन्यूज, अवसर अभी तक अवेलेबल नहीं थे. और इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो पर्पजली इतनी मोटी दिखाई गई हैं कि वो लोग इससे बाहर भी नहीं जा सकते और डिप्लोमा भी नहीं कर सकते, डिग्री भी नहीं कर सकते. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और हीरो होंडा मोटर्स का जो संयुक्त प्रयास इस प्रोजेक्ट के रूप में आपके सामने आया है, ये पूरा प्रयास सिर्फ इस सेगमेंट के लोगों को ऊपर उठाने का है. आज आपको हम एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए यहां पे लाए हैं, आपको ओरिएंट कर रहे हैं, आप वो प्रोग्राम करेंगे, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. कल हो सकता है हम उसके लिए डिप्लोमा शुरू करें, हो क्या सकता है, हमारा पूरा ये प्लान है कि हम उसके लिए डिप्लोमा शुरू करेंगे. एक बार आप वो डिप्लोमा कर लेते हैं तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं. हमारा यहां पे बैठ के जो आपको बताने का उद्देश्य है, या विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य है, वो आपको एक कैरियर पाथ देना है. आप नीचे ट्रेड लेवल से शुरू करते हैं, आप पढ़ाई करके सर्टिफिकेट करते हैं, आप फिर डिप्लोमा करते हैं, फिर आप डिग्री करते हैं. आपको अवसर प्रदान करना हमारा काम है, उन अवसर को लेकर फायदा उठाना वो आपका काम है. तो ये इस स्लाइड से मैं यही दिखाना चाहता था कि हमने वो प्रयास शुरू कर दिए हैं. अब आपसे अपेक्षा है कि आप भी अपने प्रयास शुरू करें और एक सुनहरे भविष्य की कल्पना शुरू कर सकते हैं. आप यदि आप देखें कि इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी तक क्यों नहीं हुए, इन प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं. जो मुख्य कारण है उनके कि नो पेडागोगिक एडवांसमेंट पुट फोर्थ फॉर टू एड्रेस दिस लर्नर. इस तरह के लोगों के लिए, इस समुदाय के लिए सरकार ने आज तक कोई इस तरह का प्रोग्राम डिजाइन नहीं किया. तो ये एक कारण है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है. और जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये करना है तो फिर से ये प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है कि ऐसे लोगों के लिए कोई प्रोग्राम डिजाइन करना जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो आपके क्लास में नहीं आ सकते. तीसरी बात ये कि ये जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में हैं और वो भी देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं, एक जगह पे नहीं है. चौथा कारण यदि हम देखें कि ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग में आपको काम सिखाना है, जबकि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है आज की तारीख में वो किताबों के थ्रू आपको ज्ञान देता है और प्रैक्टिकल लैब्स में कराते हैं. पर लेकिन यहाँ पे जो मेन
पर्पज है वो है आपको ट्रेनिंग देना काम के बारे में, तो फिर से ये प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। और लास्ट में जो है ये है कि जो लोग हैं वो किसी के साथ काम कर रहे हैं, उनका जो एम्प्लॉयर है वो आपको नहीं छोड़ सकता इस ट्रेनिंग के लिए। तो इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड हमने ये सोचा कि एक विशेष तरह का प्रोग्राम हम शुरू करें जो कि डिस्टेंस लर्निंग से हो, क्योंकि यदि आप देखें कि इन सारे जितने भी कारण हैं, इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई शिक्षा प्रणाली काम कर सकती है आपके लिए, आपको ट्रेन कर सकती है, तो वो है ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम। दैट इज द ओनली आंसर टू एड्रेस दिस टारगेट ग्रुप। ये मैंने इस स्लाइड में बताया। तो इसके बाद हम दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने, इग्नू एंड हीरो होंडा, हमने मिलके ये सर्टिफिकेट आप जैसे लोगों के लिए डिजाइन किया। एंड जैसा कि मैंने बताया कि हम आगे भी इस पे काम करेंगे और आपके उत्तरोत्तर प्रगति के लिए, आपके डिप्लोमा डिग्री के लिए भी हम इस पे काम करेंगे। ये प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है, चौथे सोपान पे हम इस समय खड़े हुए हैं। आगे भी ये प्रोग्राम चलेगा और आगे हम फिर इसके और हायर एंड प्रोग्राम्स भी डिजाइन करेंगे। अब सवाल उठता है कि आपके लिए ये क्यों जरूरी है, वाई सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। आप देखें रिकॉग्निशन ऑफ देयर स्किल्स, आपकी जो स्किल्स हैं, जो आप काम करते हैं, उसका आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आप बहुत अच्छे वर्कर हैं पर आपके पास उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये एक प्रयास है कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाए, आपकी स्किल को डॉक्यूमेंट किया जाए, आपके पास एक ऐसा कागज हो जो आपको, जो दूसरे को बता सके। आपको तो आपको अपने बारे में मालूम है, पर वो दूसरे को बता सके कि यस आप जो है ये काम कर सकते हैं। एनहेंस्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यदि आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा तो जो आदमी आपके पास काम कराने आएगा उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपके सर्टिफिकेट को देखकर कि आप काम जानते हैं। वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी इन द इंडस्ट्री इन द कंट्री, आप यदि आज ये जिस काम में लगे हैं आप दूसरी जगह जाते हैं, यदि किसी भी कारण से दूसरी जगह जाते हैं, तो उस सर्टिफिकेट से आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, आपको लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी जगह लेने की कोशिश करेंगे, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। आप यदि कल बाहर जाना चाहें, देश से बाहर जाके काम करना चाहें, पैसा कमाने जाना चाहें, तब भी आपको ये प्रमाण पत्र आपकी सहायता करेगा। ये आपको खुद, आपका कॉन्फिडेंस, ये सर्टिफिकेट लेने के बाद आप देखेंगे कि आपका काम करने का तरीका खुद बदल जाएगा, आपको खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस से डेफिनेटली जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, या जो प्रोडक्टिविटी है, जितना काम आप कर पाते हैं उससे ज्यादा काम कर पाएंगे, बेहतर ढंग से कर पाएंगे और अधिक अच्छे गुणवत्ता से कर पाएंगे। आपकी सर्विस कंडीशंस जो हैं, जिस सर्विस कंडीशंस में आप काम करते हैं, जितने पैसे आपको मिलते हैं, निश्चित रूप से उस पर इजाफा होगा इस प्रमाण पत्र को लेने के बाद। और व्हाटएवर जो भी मैंने आपसे कहा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से आपके जो पैसा है वो भी बढ़ेगा। और लास्टली कभी हो सकता है कि सरकार भी ये निश्चित कर दे कि कहीं पे काम करने के लिए आपको इस प्रमाण पत्र की ही जरूरत है, जो लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट है वो भी कभी इसमें आ सकती है, उस समय भी ये प्रमाण पत्र आपको फायदा देगा। तो इन बिंदुओं पे बेसिकली कि आपको क्या क्या फायदे हैं इस सर्टिफिकेट प्रोग्राम से। अब इसके बाद हम आते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इग्नू HHML मोटरसाइकिल टेक्नीशियन कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये मोटरसाइकिल तकनीशियन दक्षता विकास कार्यक्रम, हम इसे हिंदी में कह सकते हैं। ये एक सम्मिलित प्रयास है, संयुक्त प्रयास है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एवं हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड का। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड वोकेशनल क्वालिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि आपको कोई भी ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें आपके काम करने के ढंग पे हम अपना कहना चाहिए कि कंसंट्रेट करें। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उस पे हम कंसंट्रेट करके आपको ये बताएं कि आप इस काम को इस ढंग से ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वोकेशनल क्वालिफिकेशन सिस्टम पे हम बिलीव करते हैं और उस पे हमने ये प्रोग्राम बनाया है, जहां पे कि पूरा एकेडमिक रिस्पांसिबिलिटी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की है, वहीं इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने ट्रेनिंग सेंटर्स के माध्यम से हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड ने ली है। तो ये इस प्रोग्राम के बारे में है। यदि आप ऑब्जेक्टिव्स देखें इस प्रोग्राम के अपनी स्क्रीन पे, तो बेसिकली टू प्रोवाइड मोर असेसेबल एंड क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, आपके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इस प्रोजेक्ट के थ्रू इंटरप्रेन्योर स्किल्स इन द वर्कफोर्स थ्रू ट्रेनिंग के माध्यम से आप में अपने पैर पे खड़े होने की क्षमता का विकास करें। कल आप इस बात के लिए मोहताज ना हो कि आप
कहीं पे ही काम करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आप में इस प्रमाण पत्र को करने के बाद इतनी क्षमता विकसित हो जाए कि आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि मैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके अपनी दुकान शुरू करना चाहता हूं या अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं, तो वो क्षमता, वो कॉन्फिडेंस भी आप में आए, ये हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से उद्देश्य है, उस क्षमता का विकास करना आपके अंदर। टू एनहांस द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रोग्राम को करने के बाद आप खुद अपने आप में पाएंगे कि आपकी क्वालिटी सुधर गई है, आपकी प्रोडक्टिविटी 1 घंटे में जितना काम आप करते थे उससे ज्यादा काम उस 1 घंटे में आप कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। इस प्रोग्राम को करने के बाद यदि आप निश्चित रूप से पूरे मनोयोग से इस प्रोग्राम में बताई हुई चीजों को समझेंगे और उसको अपने काम करने के ढंग जो है उसमें ढालने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी गुणवत्ता और प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। और लास्टली इस प्रोग्राम का एक बहुत बृहद उद्देश्य है बेटर इंडस्ट्री एजुकेशन लिंकेज। हमारे देश में जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो अपना काम करते हैं, जो उद्योग विभाग है, जो उद्योग हैं वो अपना काम करते हैं, पर लेकिन किसी देश के प्रगति के लिए, किसी देश के विकास के लिए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि इन दोनों फॉर बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ द कंट्री, इनको आना, आपस में आना, पास आना बहुत जरूरी है, जहां पे कि आपके शिक्षा में जो काम चल रहे हैं वो उस तरह के हों जो उद्योग चाहता है और उद्योग में वैसे लोग जाएं शिक्षा के माध्यम से जैसा उद्योग चाहता है। तो इस तरह से बेटर एजुकेशन एंड इंडस्ट्री लिंकेज, ये भी एक उद्देश्य है इस प्रोग्राम का। मैं फिर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। फोन नंबर्स डॉक्टर व्यास ने आपको बताए हैं, क्योंकि आप जब तक हमें नहीं रोकेंगे हम तो अपना प्रेजेंटेशन करते रहेंगे। इसके बाद हम सीधे सीधे प्रोग्राम पे आ रहे हैं, पर मैं फिर से प्रार्थना करूंगा सारे रीजनल सेंटर्स में जो लोग बैठे हुए हैं, वो जो स्टूडेंट्स सेंटर्स के हैं उनसे, कि आपको यदि कोई भी क्वेश्चन पूछना है और इस प्रोग्राम को इंटरैक्टिव बनाना है तो फोन नंबर आपके स्क्रीन पे इस समय है, आप उन फोन नंबर्स को नोट कर सकते हैं और उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यहाँ पे भी जो हमारे छात्र बैठे हुए हैं उन्हें भी कोई चीज पूछनी है तो वो भी कभी भी हमसे आगे का सवाल पूछ सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो स्कोप ऑफ ऑपरेशन है कि हम कैसे कैसे काम करेंगे, तो सबसे पहले हमने कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स डेवलप किए हैं। फिर उसके बाद उन स्टेटमेंट्स के बाद आपको कुछ पूछना है, बताइए। सर, मेरा नाम सर जयप्रकाश है, मैं नजरोड से लोकल मैकेनिक हूँ। सर, मैंने आईटीआई की हुई है, मैं ऊपर डिग्री या डिप्लोमा वगैरह करना चाहता हूँ, उसके लिए सर मुझे क्या करना होगा? ठीक बात है, अभी तो आपने आईटीआई किया हुआ है, आप ये सर्टिफिकेट ले रहे हैं। हाँ जी सर। इसके बाद मेन प्रॉब्लम यह है कि आईटीआई के बाद या तो आप पार्ट टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम में जा सकते थे, कुछ पॉलिटेक्निक में रात को पार्ट टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम चलते हैं जहां पे आप डिप्लोमा कर सकते हैं और फिर डिप्लोमा करने के बाद फिर आप डिग्री के लिए जा सकते हैं, फिर से पार्ट टाइम डिग्री प्रोग्राम्स जो जामिया में या और अन्य विश्वविद्यालयों में देश के चलते हैं, उन पाठ्यक्रमों में आप दाखिला ले सकते हैं। पर इस प्रोग्राम को करने के बाद जब हम अपना डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू करेंगे तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज यदि चूंकि आपने बताया कि आप आईटीआई हैं तो आप पार्ट टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम जो पॉलिटेक्निक में चल रहे हैं उनसे भी आप उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा एक शायद एसोसिएशन है मैकेनिकल इंजीनियर्स की, वो भी आपके लिए प्रोग्राम चलाते हैं। अगर आप साइट अगर आपको इंटरनेट की एक्सेस है तो वहां पे देखिएगा, या फिर हमसे आप बाद में मिलें। मेरे पास कुछ पेपर्स हैं जिसमें ये बताया गया है कि एक एसोसिएशन है और वो रिकॉग्नाइज भी है गवर्नमेंट से, तो वो प्रोग्राम आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, इसके बाद यदि हम, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हमने इस प्रोग्राम को के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड वोकेशनल क्वालिफिकेशन सिस्टम डिवाइस किया है। इस सिस्टम में हम सबसे पहले बेसिक कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई करते हैं जो इस प्रोग्राम के लिए मोटरसाइकिल टेक्नीशियन है। फिर हम उस कॉम्पिटेंसी के लिए हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, वो स्टैंडर्ड जो कि हम बैठ के हीरो होंडा मोटर्स के साथ, यस हैदराबाद, this is Dr. Swarup from Hyderabad Regional Center. Yeah. We have around 20 participants watching this program, and they will interact whenever they want. Okay, thank you.
Thank you, Dr. Swaroop. It's good to hear this information that 20 students are there in your center in Hyderabad. Good. In the future course, if they want ask any question, they can ask. And again, thank you very much for the information given that 20 students are there in the Hyderabad Regional Center. हम बात कर रहे थे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स की. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हीरो होंडा के माध्यम से कि ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हैं. यदि वो स्टैंडर्ड आप अचीव करते हैं तो हम आपको सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं. उन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के एक स्टैंडर्ड के लिए हमने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बनाया है. उस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको इवैल्यूएट किया जाएगा कि आप उन स्टैंडर्ड्स तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं. और उन क्राइटेरिया, वो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो हमने डिवाइस किए हैं इवैल्यूएशन के लिए, आपके लिए हमने बनाए हैं एविडेंसेस. ये एविडेंसेस आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे सामने दिखाने होंगे करके. हाँ, कॉल फ्रॉम बड़ोदरा. या थैंक यू. प्लीज. हाँ जी, जरा आपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा. बड़ौदा साहब बड़ौदा से. हेलो राजीव साहब, आप जरा अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा. हाँ, पूछिए. हेलो. या हाँ, बताइए. ये प्रोग्राम से हमको क्या क्या फायदा हो सकता है? और कुछ पूछना चाहते हैं? अभी ये आप प्रोग्राम दिए, हमने શું फायदो થઈ શકે છે? अरे तो गुजराती. चलिए, आपको इस कार्यक्रम के फायदे निश्चित रूप से हम फिर से बताएंगे. और कुछ आप पूछना चाहते हैं? अभी आपका प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा. हाँ, हमको पता कि इससे फायदा क्या, फायदा हमको. चलिए, अच्छा. ठीक है, आपकी बात हम समझ गए. हाँ, दे दीजिए. पुणे प्लीज गो अहेड. मॉर्निंग सर, दिस इज 5 से. हाँ, 5 से सर. यहाँ पर अभी करीब 14 लोग आ जाएंगे प्रोग्राम के लिए, और उम्मीद है और दो प्रोग्राम दो लड़के आ जाएंगे, तो 16 लोगों का ये बैच हो जाएगा. नहीं तो अभी आपके स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं रीजनल सेंटर में? हाँ, बिल्कुल मौजूद है यहाँ पे. 14 बच्चे हैं. 2 people, those are from outside पूना, बाकी Okay. सारे यहाँ पे हैं. तो पांसे साहब, द ओनली रिक्वेस्ट. लड़के को कोई क्वेश्चन पूछना है. अच्छा, प्लीज. हॅलो सर, या. मी पुण्यावरून बोलतोय. हेलो सर. हाँ, हाँ, सुन रहे बताइए. हैं हम मैं लोग. अनिल बोल रहा हूँ. हाँ, बताइए. मैं पुणे से बोल रहा हूँ. आपने जो किताबें दी है ना इंग्लिश और हिंदी में, वो हमको मराठी में मिलेगा? आप तो अच्छी खासी हिंदी बोल रहे हैं. हाँ, बोल रहे हैं, मगर मेरे जो दोस्त है दूसरे, उनको भी मराठी में चाहिए ना. बिल्कुल, आपकी बात हम तक पहुंच गई है. हम इस पे बिल्कुल विचार करेंगे. अनिल जी, बस एक ही चीज आप ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में हर 100 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है. यदि आप हिंदी बोल सकते हैं और हिंदी समझ सकते हैं तो हिंदी में हम निश्चित रूप से अपने कोर्स मटेरियल आपको दे पाएंगे अगले साइकिल में. पर मराठी के लिए हम आगे इस पे कार्य करेंगे. शुरुआत में हमने ऐसी भाषाओं का चयन किया है जो कि निश्चित रूप से हिंदी या अंग्रेजी से काफी दूर हैं. बाकी मराठी भाषा तो काफी हिंदी से पास है. इस समय आप चला सकते हैं. आगे निश्चित रूप से हम इसको मराठी में भी करने का प्रयास करेंगे. इससे पहले मैं जवाब देना चाहूंगा. हाँ, पुणे. हेलो. धन्यवाद सर. हाँ, धन्यवाद. इससे पहले हम आगे बढ़े, व्यास जी, वो जो एक बड़ौदा से उन्होंने सवाल किया था कि इसके क्या फायदे हैं. हालांकि हमने फायदे काफी विस्तार में अभी बताए थे कि क्या क्या फायदे हैं. क्विकली इफ यू कैन. चलिए, देखिए साहब, ऐसा है कि जब आप इस प्रोग्राम को करते हैं तो एक तो जैसा बताया गया है कि जब आपको नई जानकारी मिलेगी, काम करने का सही तरीका आपको बताया जाएगा और उसमें आपको एवेल्युएट भी किया जाएगा. मतलब उसके हर एक को हम देखते जाएंगे कि आपको किस तरह से काम करना आता है, काम कैसे करना चाहिए. ये जब हम आपको इस प्रोग्राम का भी मैकेनिज्म जैसे बताया जाएगा कि हम आपको एक हैंड्स ऑन जॉब ट्रेनिंग, मतलब एक वर्कशॉप में भी हम आपको अलग से रखेंगे जहां पे आपके जो गुरुजी, जो भी आपके उस्ताद जी वहां पर होंगे,
जो कि फोरमैन होंगे वहां पे, वो आपको आपके सारे कार्य पे बड़ा ध्यान रखेंगे उस समय कि आपको काम बताते जाएंगे। वो जहां पर भी आप कुछ दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, या जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जैसे बताया गया है कि भाई अगर जो है क्लच आपको सेट करना है तो कितना उसमें मिनिमम गैप रखना चाहिए, कितना फ्री प्ले देना चाहिए। यस कोलकाता, गो अहेड। यस कोलकाता। हेलो, यस, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, मैं कुलदीप शर्मा बोल रहा हूँ, जोनल ट्रेनिंग मैनेजर ईस्ट कैलकाटा से। बताइए शर्मा जी। सर, हमारे पास इस समय 25 कैंडिडेट्स हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम सब लोग आपका स्वागत करते हैं सर इस वीसी के लिए। ये पहला मौका है कि हम सब लोग आपको देख पा रहे हैं वहाँ पे, और हमारे कुछ साथी लोग आपसे सवाल पूछना चाहेंगे सर। प्लीज प्लीज। जरा जोर से बोलिए। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है साहब, जरा जोर से बोलिएगा। हेलो, हाँ बताइए। मैं वासिफ हुसैन कलकत्ता से बोल रहा हूँ हाँ जी। जी। ये इस सर्टिफिकेट से हमें क्या क्या वैल्यू मिलेगी, क्या क्या इसके बारे में क्या क्या इसकी वैल्यू मिलेगी, वो वही है कि उसके फायदे क्या क्या होंगे। क्या क्या फायदा मिलेगी, और हिंदी में कब तक हम लोगों को बुक मिलेगा, इसके लिए जानना चाहता हूँ। चलिए, और कुछ अच्छा, एक सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा मैं कि जो भी जहां पर हैं, जब भी हमसे प्रश्न कोई पूछते हैं तो उस समय जो टेलीविजन सेट वहां पे चल रहा है, अगर उसकी आवाज आप थोड़ी सी कम कर देंगे प्रश्न पूछने के ठीक पहले, तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह से सुन और समझ पाएंगे। अच्छा, जैसा कि अभी बार बार प्रश्न किया गया कि हमें इससे फायदे क्या हैं, और मैं उनको बता रहा था एक एक करके। तो एक तो है कि आपकी, जैसे डॉक्टर मनोज जी ने बताया, कि आपकी गुणवत्ता में सुधार होगा। आप अच्छी तरह से काम करेंगे तो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो आपका एम्प्लॉयर के पास भी ज्यादा बिजनेस आएगा, एम्प्लॉयर के पास ज्यादा बिजनेस आ रहा है और वो ये रियलाइज कर रहा है कि ये हमारे इतने अच्छे मैकेनिक हैं यहाँ पे जिनकी वजह से आ रहा है, तो वो आपको सैलरी बढ़ाने के लिए भी कोशिश करेगा, क्योंकि जब उसे पता है कि आपकी वजह से ही उनके पास जो है कस्टमर्स आ रहे हैं। इसके अलावा है कि अब आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया है, अभी इसके पहले आपको कुछ भी नहीं था। आज के दिन आपको किसी ने अगर धक्का देके निकाल दिया किसी वजह से, किसी भी वजह से, तो अब आप दूसरी जगह जाते हैं तो फिर से आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है। मतलब किस तरह से आप कन्विंस करेंगे नए आदमी को, अरे भाई हमें तो ये काम आता है, अपने यहां रख लीजिए। पर अब आपके पास जब एक सर्टिफिकेट होगा कि भाई हमने इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी से इस तरह का सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया और हमें ये काम आता है, तो एक तो सबसे पहले वो सर्टिफिकेट देखेगा, और ये सर्टिफिकेट जो कि एक यूनिवर्सिटी से मिला हुआ है, तो जिसकी वैल्यू अपने आप में है। और तो उसके बाद क्या होगा कि भाई वो सबसे पहले तो आपको काम। हाँ जी, बड़ोदरा। यस प्लीज, बड़ोदरा प्लीज। हेलो हेलो। हाँ बड़ोदरा साहब प्लीज, एक प्लीज होल्ड ऑन। हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप बड़ौदा में अपने टेलीविजन सेट का थोड़ा वॉल्यूम कम कर दें, तो इससे क्या होगा कि हम भी आपको सुन पाएंगे अच्छी तरह से और आप हमें अच्छी तरह से सुन पाएंगे। अब आप बोलिए प्लीज। हेलो। हाँ जी साहब। मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। हमने आईडिया ही नहीं किया है, लेकिन हमको आगे कोर्स करना चाहते हैं डिप्लोमे है, तो हमको ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद डिप्लोमे कर सकते हैं हम। देखिए ऐसा है कि हमने आपको बताया कि हमने एक शुरुआत की है, अभी तक जो चीज नहीं थी उस तरह की कोई चीज बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले हमारा काम होगा कि ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम हम शुरू करें और शुरू करने के बाद उसको कंसोलिडेट करें। उस प्रोग्राम को जब वो अपने आप चलने लगे और कंसोलिडेट। हेलो, चेन्नई वेटिंग। चलिए चेन्नई भी दे दीजिए, हम एक साथ सवाल दे देंगे, जवाब दे देंगे इनका। Chennai, welcome first time for this program. Please go ahead. Hello. Yes. Hello. Yes. Good morning, sir. Yeah. गुड मॉर्निंग। Calling from Chennai, Dakshinamurthy. Yeah. बताइए सर। From Hironda. Yeah. One minute, sir. One of our students want to ask some संदेह पूछने के लिए। एक Please. मिनट। Sir, good morning, sir. Good morning. Sir, I am very glad to participate in this class. Yeah. Sir, see, is it possible to any tools get through by subsidies? Any tools to subsidy? We could not listen. Is it possible to get any notes in Tamil, sir, in our mother language? Okay. Your point is well taken. अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं,
हालांकि सबके लिए तो अच्छी बात है कि तमिल में होना चाहिए और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और हमने शायद रिक्वेस्ट भी किया था दक्षिणामूर्ति साहब से और मैं यहाँ पे सबको बताने में हम यहाँ सबको बता दें कि दक्षिणामूर्ति साहब से जब हमारी बात हुई थी तो इनफैक्ट ही हिमसेल्फ ऑफर्ड कि ही विल गेट द मटेरियल ट्रांसलेटेड इन तमिल. सो इट्स सच काइंड ऑफ स्टेप्स आर वेलकम and I hope that he might have already started initiating actions in this regard. और दूसरी चीज ये है कि जहां तक इन साहब की बात थी तो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि इनको तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली है हमारे प्रोग्राम में. बैंगलोर प्लीज गिव बैंगलोर. हेलो. यस. हेलो. यस यस प्लीज गो अहेड. बैंगलोर. हेलो. हाँ बताइए. हेलो. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हेलो. Please go ahead. Hello, this is from Bangalore. Yes, please. We have 21 technicians here. Yes, good, very good. And the query is like you are telling the importance of this course, particular course. But this is the 4th time we are conducting a course, and the first 3 batches they have not got any certificates. So there is some kind of people are not coming forward right now. Okay. Okay. Have you completed your query or anything else? I'll get back to you later, sir. Okay, thank you very much. सर्टिफिकेट सबसे पहले मैं आपको सर्टिफिकेट के लिए बता दूं कि हमारे अभी तक 3 साइकिल हो चुके हैं. 3 साइकिल में 2 साइकिल के सर्टिफिकेट हमारे पास तैयार हैं. तीसरी साइकिल का रिजल्ट पिछले हफ्ते में हमें पूना से मिला है. उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है हमारे कुलपति महोदय से हमें उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है और फिर हम सर्टिफिकेट बनाते हैं. वो कार्रवाई इस समय चल रही है. अगले 5-7 दिन में वो सर्टिफिकेट भी बन के तैयार हो जाएंगे, तो हमारे पूरे तीनों साइकिल के सर्टिफिकेट हमारे पास होंगे. द ओनली थिंग इज दैट फर्स्ट टाइम जबकि हम इस सर्टिफिकेट को देना चाहते हैं तो हम एक सेरेमोनियल ढंग से इस सर्टिफिकेट को आपको देना चाहते हैं. वी वांट टू होल्ड ए स्मॉल सेरेमनी एट ऑल द 4 जोनल लोकेशंस ऑफ हीरो होंडा एंड लास्ट वीक ऑफ February or first week of March we have planned to hold those ceremonies in these 4 cities in which these certificates will be distributed to the students, and thereafter when it comes in a routine, then next time onwards we will be giving this certificate directly to the candidates after they pass within 1 or 1.5 months time. Yes, Lucknow, please go ahead. Lucknow. जी आदाब. मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, शरीफ अहमद. आदाब सर. हाईटेक मोटर. आप भी अपने टीवी का जरा वॉल्यूम कम कर दीजिएगा. लखनऊ. हाँ बताइए सर. मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद हम आपके पास जब पहुंचेंगे और आप पूरी ट्रेनिंग कराइएगा हमको, और करने के बाद में वो हमको टूल्स मुहैया करा दीजिएगा जिससे आपके तरीके से हम काम कर सकें. देखिए आपने अपना सवाल पूछ लिया, और कुछ पूछना है उसमें? जी बस भारत की शान हीरो होंडा है, यही हमें चाहिए. नहीं, आपकी बात हीरो होंडा के जो भी ऑफिशियल्स यहाँ बैठे हैं उन्होंने नोट कर ली होगी, पर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं ये आपको बता सकता हूँ कि ट्रेनिंग के समय में तो निश्चित रूप से आपको सारे टूल्स, स्पेशल टूल्स वो सब मुहैया कराए जाएंगे, पर लेकिन यदि आप उसे प्रैक्टिकली देखें कि हर कैंडिडेट को जो कि 850 रुपए फीस हमारे इस प्रोग्राम की हमने सबसे कम रखी है, उसमें वो टूल्स हर एक विद्यार्थी को देना, ये आप भी मानेंगे कि पॉसिबल नहीं है. पर लेकिन निश्चित रूप से यदि आप ये चाहते हैं कि आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं और आपको उसके लिए टूल चाहिए, तो हम कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या उनसे बात करके आपको इस तरह के लोन मुहैया कराने के लिए निश्चित रूप से कदम उठा सकते हैं. पर फिर भी आपकी बात हीरो होंडा के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने पास रख ली, वो और अपने ऊंचे अधिकारियों तक ये बात पहुंचाएंगे कि विद्यार्थी चाहते हैं कि एक टूल किट भी उनको बाद में दी जाए. चलिए अब काफी वी हैव ओनली 5 मिनट्स मोर. अब मैं इस प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूं और लास्ट में मुखिजा साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा जस्ट आधे मिनट के लिए जो बात वो कहना चाहते हो अपने विद्यार्थियों को, अपने और अधिकारीगण जो विभिन्न रीजनल सेंटर्स में बैठे हैं. देखिए स्क्रीन पे इस समय आपको इस प्रोग्राम के डिटेल दिए हुए हैं. लेवल ऑफ प्रोग्राम इज द कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम. इट्स अ 2 months प्रोग्राम. इट्स अ नॉन क्रेडिट प्रोग्राम. फी इज ₹850 एंड इसमें हम फेस टू फेस आपको
13 दिन, जो 2 महीने में से 13 दिन आपका इंटरेक्शन होगा, उसके डिटेल में आपको अभी तुरंत बताता हूं। कोर्स वेयर, जो कोर्स मटेरियल है वो आप तक पहुंच चुका है, उसके डिटेल देने की जरूरत नहीं है। Conceptual schematic of this program, if you see, there are 4 notes there to help you. IGNOU रीजनल सेंटर, जहां आप इस समय बैठे हुए हैं और उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ पा रहे हैं। HHML ट्रेनिंग सेंटर, जहां पे आप जाएंगे, ट्रेनिंग आपकी होगी, जो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है, जो और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, वो सारी चीजें वहां होंगी। IGNOU HHML प्रोजेक्ट ऑफिस इन IGNOU, वी आर हियर, मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूं इस प्रोजेक्ट का। मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर शिव कुमार व्यास, जो कि इसी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेटर हैं। हम दोनों आपके हमेशा जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप डायरेक्ट हमको लिख सकते हैं, हम आपसे निश्चित रूप से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और चौथा HHML डीलर्स वर्कशॉप है, जहां आपको भेजा जाएगा 6 दिन के लिए किसी सुपरवाइजर के अंडर में, जहां आप काम करेंगे। और बीच में आप देखें लर्नर्स ओन एनवायरनमेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका अपना एनवायरनमेंट, वातावरण, जहां आप खुद अपनी पढ़ाई करेंगे। अभी हम पुराने 3 साइकिल्स के रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं इस समय। फर्स्ट साइकिल में जो 4 जगह थी, बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, पुणे, इसमें 69 स्टूडेंट्स पास हुए, 71 एनरोल हुए थे। दूसरे साइकिल में 56 पास हुए, 58 एनरोल हुए थे। और तीसरी साइकिल में 57 पास हुए, 61 एनरोल हुए थे। यहां पे मैं ये भी बता दूं कि पूना सेंटर में 12 लोग एनरोल हुए थे लास्ट साइकिल, थर्ड साइकिल में, उसमें से 8 पास हुए हैं, 4 एब्सेंट थे, 4 फेल नहीं हुए हैं। तो अगले बार में जब वो आएंगे, अगले साइकिल में वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। जब भी इस साइकिल, फोर्थ साइकिल का एग्जाम होगा, वो 4 लोग आ सकते हैं। फोर्थ साइकिल में इस समय स्थिति यह है कि बेंगलोर से 24, चेन्नई से 29, हैदराबाद से 21, कैलकाटा से 25, नई दिल्ली से 20, लखनऊ से 16, बड़ौदा से 12, और पुणे ने अभी अभी बताया कि 14 फॉर्म उनके पास हैं, 2 और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 16 ये फॉर्म आ जाएंगे। अभी तक हमें नहीं मिले हैं पुणे के। टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द फोर्थ साइकिल एट दिस मोमेंट इज 147। सो दिस इज द डिटेल ऑफ फोर्थ साइकिल। इसमें एक ही चीज जो मुझे हीरो होंडा वोटर्स की तरफ से एक फीडबैक मिला था कि चेन्नई में 29 स्टूडेंट हैं, क्या वो 29 के 29 को करवा पाएंगे? ये आप पर्सनली मुझे दक्षिणामूर्ति साहब फोन करके बता दें कि ये चेन्नई 29 लोग हैं, हैदराबाद 21, कोलकाता 25 और बेंगलोर 24, जो एक आइडियल ग्रुप हमारा 16 से 20 का होता है। तो क्या आपके पास ये सुविधाएं हैं कि आप ज्यादा स्टूडेंट्स ले सकते हैं? यदि आप ले सकते हैं तो आप मुझे बता दें, अन्यथा हम ये मान के चलेंगे कि आपने जितने भेजे हैं उतने हैं। प्रोग्राम डिलीवरी यदि हम देखें तो इसमें कई कंपोनेंट हैं। आपकी जो प्रोग्राम गाइड है, जो अब नेट पे भी अवेलेबल होगी अगले हफ्ते से, आप इग्नू की वेबसाइट ignou.ac.in में जाके इस कंपोनेंट्स को देख सकते हैं कि कब आपको हीरो होंडा ट्रेनिंग सेंटर जाना है, कब आपको डीलर्स वर्कशॉप में जाना है। यदि हम इसका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो ये 2 महीने में ये 4 संडे हैं। इन 4 संडे में पहले और 6वें संडे आपके सेल्फ स्टडी के लिए है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ये संडे ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेशन जो कि हीरो होंडा के ट्रेनिंग सेंटर में होगा। बाकी बचे हुए टाइम में आप अपनी स्टडीज करेंगे। सबसे पहले जो आप ये इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन सेशन इस समय चल रहा है, दूसरा संडे शुरू होने से पहले 11 तारीख को दूसरा संडे है फरवरी का, उससे पहले 9 तारीख को आज हम यहां बैठे हैं। और जो 6वें और 7वें संडे के बीच में आपका हैंड्स ऑन जॉब ट्रेनिंग सेशन होगा, जिसमें आपको हीरो होंडा के किसी भी डीलर्स वर्कशॉप में जाना होगा। तो ये टोटल इस तरह से आपका मूवमेंट होगा कि कहां कहां आपको जाना है। ये सारे डिटेल आपके पास, आपके जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां के लोगों के पास है, नेट पे भी है। और जो हमने प्रिंट में दी हुई है इस समय अपनी हैंडबुक, वो भी छप के अगले 10-15 दिन में आ जाएगी, तो वो भी हम जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनको भेजेंगे। इसके अलावा जो डेट्स हैं इस साइकिल के लिए वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। आज 9 तारीख को हम इंडक्शन ओरिएंटेशन के लिए बैठे हैं। ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेशन हीरो होंडा ट्रेनिंग सेंटर में 11, 18, 25 फरवरी और 4 मार्च को होगा। 12 से 17 मार्च के बीच में आप डीलर्स वर्कशॉप में अटैच किए जाएंगे। 18 मार्च को आप लौट के हीरो होंडा ट्रेनिंग सेंटर आ सकते हैं अपनी क्वेरीज जानने के लिए। और लास्ट में 25 मार्च को ट्रेड टेस्ट होगा इस प्रोग्राम का। सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वो इस तरह का होगा। देखने में जो इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है वो यही है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपने ये स्टडीज करके और आपको यू आर हियर बाय अवॉर्डेड द सर्टिफिकेट, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इन मोटरसाइकिल सर्विस एंड रिपेयर। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। कंक्लूजन निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर अभी इस समय का अभाव है, मैं इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा।
जस्ट आधे मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए मुखीजा साहब से मैं जानना चाहूंगा कि यदि आप कुछ और निर्देश या कुछ आह्वान करना चाहें। ये कहना चाहें कि आपका एसोसिएशन आप कैसा महसूस कर रहे हैं हम इग्नू के साथ एसोसिएट करके। और मेरा सभी लोगों को एक ही मैसेज है कि ये इतना अच्छा प्रोग्राम है जिसमें वर्ल्ड की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर के प्रोग्राम चालू किया है, प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो कि कभी भी ऐसा प्रोग्राम इंडिया में नहीं था। हमारे जो टेक्नीशियंस मार्केट में हैं उनके लिए अब एक सुविधा है, एक तरीका है जहां से वो एजुकेशन लेकर के सर्टिफिकेशन ले सकते हैं और उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसका बहुत वैल्यू है। एक्चुअली ये सर्टिफिकेट आपको इग्नू और हीरो होंडा का सर्टिफिकेट है जो ज्वाइंट ब्रांडेड है और पूरा प्रोग्राम का डिलीवरी जो है एक बड़े ही सिस्टमेटिक मैनर में है। तो इस प्रोग्राम का आप अपने भाइयों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो लोग भी इस प्रोग्राम से फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मुखीजा साहब। तो मित्रों, निश्चित रूप से आपने देखा इस प्रोग्राम के बारे में आपको हमने सारी जानकारी दी। मुखीजा साहब ने आपको इसकी जानकारी दी, व्यास साहब ने आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताया, अमित जी यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि निश्चित रूप से आपके सारे कार्यक्रम की जो भी रिक्वायरमेंट है वो हेडक्वार्टर में बैठ के उसको करते हैं। समय का अभाव है, अगली बार हम अमित जी को सुनेंगे। एंड एट द एंड डेफिनेटली I am thankful to all of you at all my guests at regional centers, students at regional centers, and the Hero Honda officials that for the patience viewing and listening us and making this program interactive. Thank you very much. See you next time in the 5th cycle. Thank you very much.